Okay. Start my next topic. Yesterday we have already discussed about the factorial program, right? Write a program in C to find the factorial of any number. Is that clear? So today our next program is also of same for loop, and the program will be of Fibonacci series. We have to print the Fibonacci series as well as we have to find the whether number is prime or not. Okay, both of the program today we have to complete. So first we are starting with Fibonacci series. Write a program. Write a program in C to find out Fibonacci series. Right, you have to find out the Fibonacci series. What is Fibonacci series is blackboard blur हो गया है क्या? So what is Fibonacci series is the series in which first number is fixed, that is 0, and the second number is also fixed, that is 1. But the next number, that means from the first number onwards, first number के बाद इन दोनों के addition से next number आए. You are getting next number by adding first number and the second number. 0 plus 1, that is 1. 0, 1 plus 1, that is 2. That means you are getting the another number by adding the two previous numbers. 1 plus 2, that is 3. 3 plus 2 plus 5. 5 plus 3 plus 8. 8 plus 5, 8, 13. 13 plus 8, whatever it is, 21. Right? This is called as Fibonacci series. I repeat, what is Fibonacci series? First number is fixed, that is 0. Second number is also fixed, that is 1. The another number we are getting by adding the previous two number, that is 0 plus 1, 1, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 5, 13, and 13 plus 8 equals to 21. So that is how you can get the Fibonacci series. But the question is how you can make a generalized program to find out the Fibonacci series. So Fibonacci series, to find out the Fibonacci series, you have first ask the user how much terms he wants to find out the Fibonacci series. Fibonacci series को आप कितना भी लंबा फाइंड कर सकते हैं, it is unlimited. ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है. So you have to first ask the user how many terms he want with Fibonacci series. Suppose ये वाला जो है हमारा वो 9 terms का Fibonacci series है. आप काउंट करोगे that means 4 and 9. 9 terms की Fibonacci series है. So first you need to ask with the user. Suppose write the main function. You are asking with the user, then you have to write any variable by which you are asking the user for the terms. Printed, enter terms, scanner, percentage comma, and percent. Is that clear? Now, if we can see the first number and the second number will be fixed, it is obviously that is 0 and 1. So we are fixing that numbers a equals to 0 and b equals to 1. Got my point? I am fixing that numbers a equals to 0 and b equals to 1. And now, if I suppose this number is a, this number is b, and this number will be c, which I am getting by adding a and b. So I have to use another variable, that is c. Got my point? Now I have to print the variable a and b, the value of the variable a and b, because they are fixed. 0 and 1 are fixed. So I have to print the variable, the number, the values of the variable, that is percentage d, a value के बाद मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, अदरवाइज मैं स्पेस नहीं दूंगी और मैं 1 और 2 को
की होंगी तो मुझे 12 दिखेगा, बट दैट नंबर वाज नॉट 12, दैट इज 1 and 2, right? So I need some space, tab space or new line space, whatever you want to take, you can insert it, right? The value of A, tab space, then value of B, value of A, that is A, value of B, that is B. Got my point? Value of B, after the value of B, I also need a tab space for C, for the next value, that is C. Got my point? Hereby I am just printing the value 0 and 1. मैंने सिर्फ 0 प्रिंट किया है और उसके बाद टैब स्पेस देके 1 को प्रिंट किया, none other than this. इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 से 1 और 2 तो मेरा फिक्स हो गया, 3 से स्टार्ट करना है और तब तक करना है जब तक कि मेरा जो जितना भी टर्म यूजर ने दिया है 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी टर्म्स यूजर ने दिया है उतना टर्म्स प्रिंट नहीं हो जाता, राइट? सो आई हैव टू यूज द for loop for I equals to 1 and 2 are fixed. I have to run the looping with the C, that is third position, and should be less than equal to 3 4 5 6 7 8 9 तक चलाना है तो 9 तक ही चलाना है, तो 9, yeah, that means 9 नहीं, that is n and I plus 1 पोजीशन से इंक्रीज करते हुए जाना। मुझे करना क्या है, the C variable I am getting by adding A plus B, A और B को ऐड करके मुझे C मिल जाएगा। Got my point? A और B को ऐड करके मुझे क्या मिल जाएगा, C मिल जाएगा। And now I am considering this B as A and C as B. मैंने क्या किया, B में जो भी वैल्यू थी उसको तो A मान ली और C की जो भी वैल्यू थी उसमें B मान ली और C को मैं प्रिंट करते हुए, इससे क्या होगा देखो, क्यों किया मैंने ऐसा, देखो 5 6 10 वैल्यूज हैं तो आप उनको इजीली प्रोग्रामिंग से कर सकते हो, लेकिन अगर यूजर 50 टर्म्स 1000 टर्म्स की फैबिनेकी सीरीज देता है तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू फाइंड आउट बाय मैन्युअली or by taking without by using by making this program without looping, so it cannot be possible. So we have to use a for loop for find out the Fibonacci series. So check it, देखो हमारे पास A में क्या है 0, B में क्या है 1, दोनों प्रिंट हो चुके हैं यार, ठीक है? A की वैल्यू है हमारे पास 0, B की वैल्यू है 1, इज दैट क्लियर? नाउ I की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हुई 3 से, अब हमने चेक किया कि 3 इक्वल्स टू हमने यहाँ पे n की वैल्यू दी 9, क्या 9 से कम है ना? 9 नहीं दी तो सपोज हमने 7 तक हो जाएगा 9, ठीक है? हमने 7 तक दी, 7 तक देने के बाद हमने क्या किया, 3 7 से कम है, ठीक है? तो C की वैल्यू को A प्लस B कर दें, यानी कि C की वैल्यू क्या कर दें 1, ठीक है? इसके बाद B की जो भी वैल्यू है उसको A में डाल दो, B में क्या है 1, तो B A में क्या डाल दो 1, C की जो भी वैल्यू है उसको B में डाल दो, C में क्या वैल्यू है 1, B में क्या आ जाएगी 1, C की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, C में क्या वैल्यू थी 1, प्रिंट हो, ठीक है? वापस लूप स्टार्ट हुआ, I की वैल्यू 1 से इंक्रीज, I की वैल्यू क्या हो गई 4, अभी भी ये 7 से कम है ना? C इक्वल्स टू A प्लस B, C के अंदर दोनों को ऐड कर दो, B की जो भी वैल्यू है उसको A में डाल दो, A के अंदर भी 1, C के अंदर जो भी वैल्यू है उसको B में डाल दो, C के अंदर क्या है, ठीक है? अब C की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो, इसके बाद वापस इंक्रीमेंट, I की वैल्यू क्या होगी 5, C को दोनों को ऐड करके डाल दो, B की वैल्यू को A में डाल दो, C की वैल्यू को B में डाल दो, C की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है? C की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद I की वैल्यू क्या होगी 6, 6 होने के बाद वापस A प्लस B को ऐड करो, C में डाल दो, B में जो है उसे A में डाल दो, C में जो है उसे B में डाल दो और C को प्रिंट, I की वैल्यू क्या हुई 7, लेकिन मैंने इक्वल टू 7 भी लगा रखा है ना, तो अभी भी कंडीशन ट्रू होगी, C की वैल्यू में दोनों को ऐड करके डाल दो,
बी में जो है उसे ए में डाल दो, ए सी में जो है उसे बी में डाल दो और सी को, आई की वैल्यू क्या हो गई, जैसे ही आई की वैल्यू 8 हुई कंडीशन फॉल्स हो गई, हम लोग लूप से बाहर आ गए और हम लोगों की जो भी सीरीज थी वो प्रिंट हो गई। देखो क्या ये सीरीज वही है जो हमने दी थी, कॉमा नहीं आएगा, ये मैंने सिर्फ सेपरेशन के लिए दिखाया ताकि आपको कंफ्यूज, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई आपको, इस तरीके से इस लूपिंग को स्टार्ट करना है और फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम बनाना। अब किसी को भी अगर ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया है और कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है कि मैम ऐसे क्यों, ऊपर क्यों, नीचे क्यों, ए बी को अंदर भी लिख सकते थे, सी को बाहर भी प्रिंट करा सकते थे, व्हाई सो यू आर राइटिंग दिस इन फोर लूप और आउटसाइड द फोर लूप, देन यू कैन आस्क मी, राइट। So I'm holding this screen for 2 minutes. Is there any problem in this program? Then kindly ask me by muting your mic. Only concept. मैम प्लीज एक बार वापस बता दें। चलो वापस वापस देखो, हम लोगों को क्या करना है, देखो मेरे पास क्वेरी आई है एक बार वापस बताने के लिए। हम लोगों को फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है, ठीक है। फिबोनाची सीरीज प्रिंट होती है 0 1 1 2 3 5 8 सीरीज। जब हमें ये सीरीज प्रिंट करनी थी तो हमें 0 और 1 तो फिक्स होता है हमेशा, है ना, ऐड करके आगे आगे के नंबर आपको निकालने होते हैं। तो 0 और 1 जो फिक्स रहता है, तो हमने सबसे पहले यूजर से इनपुट कराया कि वो कितने टर्म्स तक की वैल्यू को लेना चाहता है ना, 5 6 7 कितनी सीरीज चाहता है, कितनी लंबी सीरीज चाहता है। इसके बाद वो ए और बी की वैल्यू को उसने यूजर से इनपुट करा दिया, मतलब कितनी भी लंबी सीरीज चाहिए वो यूजर से इसने इनपुट करा दिया। इसके बाद ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, ए के अंदर क्या था 0 और बी के अंदर क्या था 1, तो मैंने 0 और 1 प्रिंट मेरे, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब मेरा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तक प्रिंट हो चुका है तो मैं कहाँ से लूप को स्टार्ट करूंगी, थर्ड पोजीशन से, और कब तक चलूंगी, जब तक कि मेरी, अगर यूजर ने डाला है 5 टर्म्स 7 टर्म्स, जितना भी टर्म्स डाला है उतनी टर्म्स तक मुझे चलना, ठीक है। अब मैं थर्ड, फर्स्ट और सेकंड टर्म तो फिक्स है, थर्ड टर्म की बात आती है ना, आई की वैल्यू क्या है 3। अब मैंने कंडीशन चेक की, एन की वैल्यू क्या थी 5, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, हम लोग लूप के अंदर आएंगे। सी के, ए के अंदर क्या था 0, बी के अंदर क्या था 1, यही था ना अभी तक, तो फिलहाल सी के अंदर दोनों का एडिशन डाल दिया। अब चेंज करो वैल्यू, बी को ए के अंदर डाल दो और ए को बी के अंदर डाल दो, सी को बी के अंदर डाल दो। भाई हमने क्या किया, जब हमारा ये ए और ये हमारा बी था तो सी निकल गया ए प्लस बी को, उसके बाद जब हमारा सी फाइंड हो गया तो इसको ए ले लिया और इसको बी ले लिया और इसको सी, ठीक है। जब हमारा ये निकल गया 3 तो उसके बाद हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी, इस तरीके से हम स्कैनिंग करें। उसके बाद हमने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी, इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। तो अब सी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, सी की जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट, 1 प्रिंट हो गई, ठीक है। इसके बाद आई की वैल्यू क्या होगी, एंट्री 4 हो गई, 4 होने के बाद दोनों को ऐड किया, सी के अंदर आ गया, बी को ए के अंदर डाल दो, सी को बी के अंदर डाल दो, सी को प्रिंट कर दो, वापस लूप करो, आई की वैल्यू 5 हो गई, अभी भी कंडीशन है, वापस से सी को दोनों को ऐड करके डाल दो, बी के अंदर जो है वो ए के अंदर डाल दो, सी के अंदर जो है वो बी के अंदर डाल दो, सी को प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई, ठीक है।
6 हो गई, 6 होते ही कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स होते ही लूप से बाहर आ गए और जो भी सीरीज थी वो ऑलरेडी हमारी हो चुकी है और हमारा ये बात थी। अब समझ में आया या नहीं? बस इस तरीके से आपको करके देखो। अभी भी कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। सो हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे स्विच करें। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा द राइट ऑफ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड whether number is prime or not। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे इंटरव्यू वाइवा हो चाहे कुछ भी हो, उसके हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारा, जो कि हमें आना ही चाहिए। सो वी आर स्टार्टिंग विद प्राइम प्राइम। सबसे पहले हम ये सीखे व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट द प्राइम नंबर इज। ठीक है, व्हाट द प्राइम नंबर इज। प्राइम नंबर होते क्या हैं? ऐसे नंबर जो कि या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या वन से डिविजिबल होते हैं, यानी कि अगर उनका मॉड लिया जाए खुद से या उनका मॉड लिया जाए वन से तो उसके मॉड का रिजल्ट 0। सपोज करो 13। 13 ऐसा नंबर है जिसको वन से डिवाइड करोगे तो भी मॉड का रिजल्ट, मॉड मतलब रिमाइंडर 13 टाइम चला जाएगा। 13 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो सिर्फ 1 और 13 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, दुनिया के किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो इसका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो। तो ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर 1 से डिविजिबल होते हैं सिर्फ, है ना, कंप्लीट डिविजिबल होते हैं, उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ये आप लोग बहुत ही छोटी क्लासेस में से पढ़ते हुए बचपन से पढ़ते हैं। सपोज 7 है तो 7 को जब हमें डिवाइड करना है तो हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मॉड क्या आएगा, 0। तो हमें 1 से तो करना ही नहीं है, 1 से सेल्फ से तो सारे नंबर डिवाइड होंगे, तो हम लोग एक छोटे नंबर तक डिवाइड करके दें। समझ में आया? 1 से और सेल्फ से तो सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, तो हमें कहां से कहां तक चेकिंग करनी है, 2 से उस नंबर तक चेकिंग करनी है, ठीक है। नंबर के एक नंबर तक चेकिंग करनी है। अगर 2 का मॉड लिया कितना आया, 1 आ गया। 3 से मॉड लिया क्या आया, 1 आ गया। 4 से मॉड लिया कितना आ गया, 3 आ गया। 5 से मोड़ लिया कितना आ गया, 2। 6 से मोड़ लिया कितना आ गया, 1 आ। तो किसी से भी मोड़ लेने पे कभी भी 0 नहीं आ रहा है, बजाय वन और किसके, सेल्फ के, ठीक है। तो उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। नाउ अब हमें करना क्या है, देखो किसी भी प्रोग्राम को मगअप मत करो, रटो मत, उस चीज को समझो कि आपको प्राइम नंबर चेक करना है। तो आपको सबसे पहले यूजर से आस्क करना पड़ेगा ना कि कौन से नंबर को वो प्राइम चेक करना चाहता है ना। सबसे पहले यू हैव टू आस्क फ्रॉम द यूजर कि विच नंबर यू वांट टू चेक द प्राइम और नॉट। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एंड जिसको ये चेक करना पड़ेगा, यूजर से एंटर कराना पड़ेगा, जिसको यूजर एंटर यानी जिसको यूजर चाहता है कि मैं चेक करूं कि ये प्राइम है, सपोज यूजर ने डाला 11, ठीक है। अब हम लोगों को ये पता है कि अगर प्राइम नंबर चेक करना है तो हमें जो हमारा नंबर है ना n,
उसको डिवाइड करना है, यानी कि 11 है हमारा एन, तो 11 को डिवाइड करना है 2 से, 1 से तो करके नहीं देखना, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से। यानी कि हमें जो नंबर है ये क्या चल रहा है हमारा, आई चल, क्या चल रहा है, आई, दिस इज आई। ठीक है, तो आई हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं। और आई शुड बी लेस देन कहाँ तक, 10। अगर लेस देन है ना तो 11 से कम यानी कि 10। अगर लेस देन इक्वल टू लगाते तो 11 तक चेक करता, ठीक है ना, 11 डिवाइड बाय 11 कर लेता, लेकिन हमें 11 से तो चेक ही नहीं करना क्योंकि वो तो डिविजिबल होता ही होता है। ठीक है, तो हमें तो लेस देन एन तक चेक किया, आई प्लस प्लस, यानी कि एक नंबर पहले 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 10 तक। ठीक है, हमने ये नंबर एन का मॉड लिया किससे, आई से। चीज समझ में आई। इफ हम एन का मॉड लेते हैं आई से और हमारा मॉड इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि किसी भी नंबर को मॉड लेने पे, यहाँ पे तो किसी भी नंबर से मॉड लेने पे 0 नहीं आया, लेकिन अगर इसी की जगह 10 होता या फिर या फिर 9 होता, तो आप जब 9 को 2 से मोड़ लेते, 3 से मोड़ लेते, 4 से मोड़ लेते, 5 से लेते, 6 से लेते, 7 से लेते, 8 से लेते, है ना, तो 2 से मोड़ लिया तो 0 नहीं आया, लेकिन 3 से मोड़ लेने पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई नंबर मॉड तो नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात को, कि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे उसका मॉड 0 आ जाता है तो ये पता चल जाता है कि नंबर प्राइम तो नहीं है। ठीक है ना, फिर उसको आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर किसी भी नंबर को आई से मॉड लेने पे वो नंबर 0 आ जाता है तो आप क्या करो, फ्लैग एक वेरिएबल ले लो, फ्लैग, जिसको आप 0 से इनिशियलाइज करो। ठीक है, तो जैसे ही डिवीजन के बाद 0 आए तो आप उस फ्लैग की वैल्यू को क्या कर दो, 1 कर दो और लूप को वहीं पे ब्रेक कर दो। समझ में आ रहा है, जब n डिवाइड ऑफ 3 आपका 0 आ चुका है तो आपको जरूरी था कि उसको आगे चेक करना, वहीं पे आपको लूप टर्मिनेट, भाई हमारी कंडीशन तो वहीं पहुंच चुकी कि नंबर प्राइम नहीं है, तो हमें आगे क्या चेक करना है, तो हमने उसको लूप को टर्मिनेट यहीं पे कर दिया, आगे हमने इनको चेक किया ही नहीं। ठीक है, आई की वैल्यू को 3 के आगे बढ़ाया ही नहीं। ठीक है, अगर हम लोगों का किसी भी नंबर पे, हमने जब 11 लिया अगर है, तो अगर किसी भी नंबर पे 0 नहीं आया तो ये चलता रहेगा 10 तक, है ना, ये 10 तक चलता रहेगा, लेकिन किसी भी नंबर पे 0 नहीं आएगा तो ये अंदर घुसेगा ही नहीं जाएगा ना, ये अंदर क्यों जाएगा, इस लूप के अंदर एंट्री कब लेगा, जब रिमाइंडर 0 आए, लेकिन 11 के केस में तो रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फ्लैग की वैल्यू जो 1 होनी थी वो होएगी ही नहीं, फ्लैग की वैल्यू जो 0 थी वही की वही बनी रहेगी ना, फ्लैग की वैल्यू 0। तो अगर हम कह सकते हैं कि अगर फ्लैग की वैल्यू 0 की 0 ही बनी रहती है, हम लोग अंदर जाते ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ये चेक करा, प्रिंट करा देंगे कि प्रिंट है नंबर इज प्राइम एल्स, हम लोग प्रिंट करा देंगे नंबर इज नॉट क्या समझ में आया या नहीं आया, ऑब्वियसली नहीं आया है, वापस देखो, हम जब नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, करते जा रहे हैं और हमारे किसी भी नंबर पे आगे मॉड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, सपोज इस वाले केस को देखो, मॉड की वैल्यू 0 हो गई, अब मॉड की वैल्यू 0 हो गई तो कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू होते ही तो ये लूप के अंदर एंटर कर गया। अभी लूप के अंदर एंटर करते ही इसने सबसे पहला काम क्या किया कि फ्लैग की वैल्यू जो 0 थी उसको क्या बना दिया, 1 बना दिया।
अब जब इस केस में फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दिया तो हमने क्या कर दिया, लूप को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि जब ये प्राइम है ही नहीं तो आगे चेक करने से क्या मतलब है ना। हमें तो यही चेक करना था कि प्राइम है या नहीं है, तो हमें आगे से मतलब ही नहीं है। तो हमने क्या किया, फ्लैग की वैल्यू को 1 कर दिया और लूप को टर्मिनेट कर दिया। और अगर फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि कोई भी कंडीशन में ये लूप के अंदर चला गया, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, तो नंबर प्राइम नहीं है। और अगर फ्लैग की वैल्यू 0 की 0 ही बनी रही, यानी कि कोई भी कंडीशन में ये अंदर गया ही नहीं, किसी का भी रिमाइंडर 0 आया ही नहीं, तो हमारा नंबर प्राइम है। समझ में आया? इसीलिए मैंने इस एक लूप को लगाया है, यहाँ पे हमने फोर लूप लगाया है, उसके बाद फ्लैग के ऊपर कंडीशन को सेट किया है और उसके बाद हमने रिजल्ट। दैट इज द मेन थिंग ऑफ प्राइम नंबर। क्या समझ में आया है या नहीं आया है? वाई वी यूज फ्लैग? हम लोग फ्लैग की जगह कोई भी और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। फ्लैग इज नॉट इट इज जस्ट लाइक अ वेरिएबल। अगर हम फ्लैग यूज नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि नंबर प्राइम है या नहीं। हमें कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे हमें लूप को टर्मिनेट करना है, यहाँ पे हमारा नंबर प्राइम हो चुका है, प्राइम की कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 हो चुकी है। अगर फ्लैग की जगह आप सी लेते तो ले सकते थे, आप पी लेते तो आप पी ले सकते थे, कोई भी वेरिएबल जो 0 था वो चेंज होके अगर और कुछ हो जाता है, ठीक है ना, कुछ भी हो जाता है, तो इसका मतलब वो वेरिएबल हमारा प्राइम नंबर है। इसीलिए हमने फ्लैग को यूज किया। कभी भी कंडीशन ऐसे चेक होंगी तो आपको कई जगह यूज करना पड़ेगा। और भी बहुत प्रोग्राम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होने लग जाएगा कि कहाँ पे हमें फ्लैग यूज करना है और कहाँ पे फ्लैग को नहीं यूज। देखो कई बार हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तुरंत हमें स्विच, हम लोग वो अंताक्षरी वाला प्रोग्राम खेलते हैं ना, जिसमें हमें अगर हमें आंसर आता है तो तुरंत हमें फ्लैग को प्रेस करना होता है, तभी हमें मतलब बटन को प्रेस करना होता है। तो जैसे ही प्राइम नंबर आएगा ना, जैसे ही प्राइम नंबर की कंडीशन फॉल्स होगी तो उसी केस में तुरंत प्रेस हो जाएगा कि अंदर चली जाएगी और वो बजर दबते ही वो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फ्लैग की वैल्यू 1 होते ही पता चल जाएगा कि भाई आपको आंसर आता है, दैट मीन नंबर प्राइम नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये काम हो रहा है, ऐसे समझो इसको। आपको धीरे धीरे करके आइडिया लगने लगेगा कि व्हेन और व्हाई वी आर यूजिंग फ्लैग। एनीथिंग एल्स? So our class is going to wind up. Our timing is going to over. Okay, bye bye.